Good morning class. Today we are looking for new topic, that is heart failure. Start from the introduction. Heart failure, it is sometimes also known as congestive heart failure, decompensatio cordis, and congestive cardiac failure. And the heart failure, it doesn't mean the heart has stopped working. It means that the heart works less effectively than the normal. So heart failure, it is also known as congestive heart failure, and it arises or it occurs when the heart is unable to pump sufficiently to maintain the blood flow to the meet body needs or according to the body demands. And when the heart becomes fail to maintain the body demands, the heart try to compensate this condition by three way. First one is enlarging, second one is developing more muscle mass, and third one is pumping faster. So first one is enlarging. The heart is stretched to contract more strongly and keep up with the demand to pump more blood, and over the time this can cause the heart to become enlarged as well as weak also. Next one is developing more muscle mass. And the increase in muscle mass occurs because the contracting cells of the heart get bigger and bigger, and this led the heart pumps more strongly, especially in the initial phase of heart failure. Next one is pumping faster. This helps to increase the heart output when the heart try to compensate the condition of heart failure. Next is definition. It is characterized by the heart inability to pump an adequate supply of blood to the body, and without sufficient blood flow all body major function are disrupted or diminished, and it is a condition or a collection of the symptoms that weakens your heart. There are four types of heart failure. First one is left sided heart failure, second one is right sided heart failure, third one is diastolic heart failure, and last one is systolic heart failure. I will deal it one by one. First one is left sided heart failure. It is most common type of heart failure, and it occurs when the left ventricle doesn't pump effectively, and this prevent the body from getting enough oxygen rich blood, because here the left ventricles is unable to supply the oxygen rich blood to our body, and that leads to congestion of blood in the pulmonary space, and that leads to shortness of breath and buildup of fluid. लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर में क्या होता है, जो हमारे लेफ्ट साइड के जो वेंट्रिकल्स हैं वो हमारे बॉडी को ऑक्सीजन रिच ब्लड सप्लाई करते हैं, लेकिन यहाँ पे लेफ्ट साइड जो वेंट्रिकल्स हैं वो प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो ब्लड है इनफ अमाउंट में जो ब्लड है वो पंप नहीं हो पाता है बॉडी को, और बॉडी को सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन रिच ब्लड नहीं मिलता है. दैट इज लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर. नेक्स्ट वन इज राइट साइडेड हार्ट फेलियर. इट्स ऑफन रिजल्ट एज ए लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर. मैक्सिमम अगर हम केसेस देखते हैं तो पेशेंट को लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर होने के बाद पेशेंट राइट साइडेड हार्ट फेलियर भी हो जाता है. The right sided heart failure occurs when the right side of the heart can't perform its job effectively. It usually triggered by the left sided heart failure, and the accumulation of blood in the lungs caused by the left sided heart failure makes the right ventricle work harder, and this can stress the right side of the heart and cause it to fail. क्या होता है, जो ब्लड है जो ब्लड का एक्यूमुलेशन हुआ है लंग्स में, किसकी वजह से, लेफ़्ट साइडेड हार्ट फेलियर होने की वजह से, तो उसकी वजह से क्या होता है, बॉडी को सफिशेंट अमाउंट में ब्लड सप्लाई नहीं हो रही, और जिसकी वजह से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू सफिशेंट अमाउंट में राइट वेंट्रिकल में ब्लड नहीं आएगा, एंड राइट वेंट्रिकल में ब्लड नहीं आने के कारण सफिशेंट अमाउंट में हार्ट को भी ब्लड सप्लाई नहीं होती है, सफिशिएंट जो ब्लड सप्लाई होनी चाहिए हार्ट को वो भी नहीं हो पाती है, एंड दिस कैन स्ट्रेस द राइट साइड ऑफ द हार्ट, और जिसकी वजह से राइट साइड जो हार्ट है उस पर अफेक्ट स्ट्रेस पड़ता है, एंड इट कॉज फेलियर ऑफ द राइट साइड ऑफ द हार्ट. Next one is diastolic heart failure. It is third type of heart failure. It occurs when the heart muscle become stiff. That means hard muscles become very hard,
So it occurs when the hard muscles become stiff than the normal, and the stiffness, which is usually due to heart disease, means the heart doesn't feel the blood easily. This is known as diastolic dysfunction. It leads to a lack of blood flow to the rest organ of the body. डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर में क्या होता है, इसमें जो हमारे हार्ट के डायस्टोलिक हार्ट फेलियर में क्या होता है, हमारे जो हार्ट के मसल्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्टिफ हो जाते हैं. स्टिफ होने की वजह से प्रॉपर ब्लड की फिलिंग नहीं हो पाती है. दैट रिजल्ट इन डायस्टोलिक हार्ट फेलियर. नेक्स्ट वन इज सिस्टोलिक हार्ट फेलियर. It occurs when the heart muscles lose its ability to contract. सिस्टोलिक हार्ट फेलियर कब होता है, जब हार्ट के जो मसल्स हैं उनकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी जो है, कॉन्ट्रैक्शन करने की जो एबिलिटी है वो लॉस हो जाती है. द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट आर नेसेसरी टू पंप द ऑक्सीजन रिच ब्लड आउट ऑफ द बॉडी. सिस्टोलिक हार्ट फेलियर का रीज़न क्या है कि हमारे हार्ट से जब में के वेंट्रिकल्स में जब तक से कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, चैम्बर्स में जब तक से कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, तो उसकी वजह जब कॉन्ट्रैक्शन ही नहीं होगा तो ब्लड पंप आउट नहीं होगा आउट ऑफ फॉर द बॉडी, रेस्ट ऑफ द बॉडी. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो वेंट्रिकल्स है उनमें कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है. कॉन्ट्रैक्शन नहीं होने की वजह से ऑक्सीजन रिच जो ब्लड है वो हमारे बॉडी को नहीं मिलता है. एंड दिस प्रॉब्लम इज नोन एज सिस्टोलिक डिसफंक्शन. इट यूजुअली डेवलप्स व्हेन द हार्ट बिकम्स वीक एंड enlarge. Here you can see in this picture, this is the normal heart and this is the systolic dysfunction. In this the enlarged ventricles fill with the blood. यहाँ पे क्या है, जो ब्लड की फिलिंग बहुत ज़्यादा हो गई है. नेक्स्ट वन इज द वेंट्रिकल्स पंप आउट लेस देन 40 to 50 आउट ऑफ ब्लड. तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं सिस्टोलिक डिसफंक्शन में क्या हो रहा है, पहली चीज़ क्या है, जो वेंट्रिकल्स हैं वो इनलार्ज हो गए हैं एंड द स्टिफ वेंट्रिकल्स फील द लेस ब्लड देन द नॉर्मल, जिसकी वजह से ब्लड की जो फीलिंग है वो वेंट्रिकल्स में वो कम हो रही है. नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर सिस्टोलिक डिसफंक्शन में देखते हैं तो यहाँ पे क्या है, नॉर्मली यहाँ पे 60% जो है वो ब्लड आउट हो जाता है फ्रॉम द पल्मोनरी आर्टरी, फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल टू द पल्मोनरी आर्टरी. अगर यहाँ पे हम देखें सेकेंड वाले जो पिक्चर्स है उसमें अगर हम देखें, देन द वेंट्रिकल्स पंप आउट लेस देन 40 to 50% ऑफ द ब्लड. यहाँ पे 40 to 50% ऑफ जो ब्लड है वही वेंट्रिकल्स पंप कर पा रहा है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन करने की जो एबिलिटी है वो डिक्रीज हो गई है एंड बिकॉज ऑफ दैट द वेंट्रिकल्स pumped out about 60% of the blood, but the amount may be lower than the normal. यहाँ पे क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन करने की एबिलिटी उनकी चली गई है, तो यहाँ पे वो जो ब्लड है उसको सफिशिएंटली और एफिशिएंटली दोनों ही वो पंप आउट नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से हमारी बॉडी को ऑक्सीजन रिच ब्लड सप्लाई है वो सफिशिएंट अमाउंट में नहीं होगी. नेक्स्ट is stages of heart failure. So in first stage the people at high risk for developing the heart failure in the future, but there is no functional or structural heart disorder is present. जो स्टेज फर्स्ट 1 में जो रहते हैं हार्ट फेलियर वाले पेशेंट, वो हायर रिस्क पे रहते हैं कि उनको हार्ट फेलियर हो सकता है, लेकिन उनमें किसी भी तरह का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल किसी भी तरह का डिसीज़ नहीं होता है, हार्ट से रिलेटेड कोई भी डिसऑर्डर नहीं होता है. सेकेंड स्टेज बी, इन दिस अ स्ट्रक्चरल हार्ट डिसऑर्डर इज प्रेजेंट बट नो सिम्टम्स. सेकेंड जो स्टेज वाले होते हैं हार्ट फेलियर वाले पेशेंट, उनमें स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम होती है हार्ट से रिलेटेड, लेकिन उनमें किसी भी तरह का सिम्टम्स नहीं होता है सेकेंड स्टेज में. स्टेज थर्ड, दैट इज स्टेज सी, previous or current symptoms of heart failure in the context of underlying structural heart problem but managed with the medical treatment. जो इस स्टेज थर्ड में जो हार्ट फेलियर वाले जो हार्ट पेशेंट होते हैं उनमें आपको पर्टिकुलर एक स्ट्रक्चरल हार्ट प्रॉब्लम मिलेगा, साथ ही साथ उससे रिलेटेड साइन एंड सिम्टम्स भी मिलेंगे, लेकिन ये जो स्टेज है वो मेडिकल ट्रीटमेंट से मैनेज हो जाता है. एंड लास्ट स्टेज, दैट इज स्टेज 4, एडवांस डिसीज रिक्वायरिंग हॉस्पिटल बेस्ड सपोर्ट, हार्ट ट्रांसप्लांटेशन और समटाइम्स मे रिक्वायर्ड पैलेटिव केयर. तो ये 4 स्टेजेस हैं हार्ट फेलियर के, स्टेज 1, 2, 3 and 4. Here a summary of 4 stages of heart failure. So in stage first, the clinical symptoms is
breathlessness or tiredness, especially when a patient go for brisk walking, jogging or taking flights of stairs. जब पर्सन सीढ़ियाँ चढ़ रहा है या जॉगिंग कर रहा है या तेज चल रहा है तो पेशेंट को ब्रीथलेसनेस और थकान होगी. इन द सेकेंड स्टेज पेशेंट इज़ कंफर्टेबल व्हेन द रेस्टिंग. पेशेंट कंफर्टेबल रहेगा जब वो रेस्ट कर रहा है. बट हार्ट रेसेस एंड ब्रीथलेसनेस स्टार्ट व्हेन द पेशेंट गो फॉर अ वॉक और वॉकिंग फॉर अ ब्लॉक और टेकिंग द स्टेयर. लेकिन पेशेंट अगर सीढ़ियाँ चढ़ना स्टार्ट हो रहा है लेकिन पेशेंट सिंपली एक ब्लॉक को एक पास कर रहा है या सिंपली अगर वॉक भी कर रहा है तो पेशेंट को क्या होगी, ब्रीथलेसनेस फील होगी. स्टेज थर्ड, देयर इज़ पाल्पिटेशन और टायर्डनेस विथ सिंपल टास्क. इसमें पेशेंट की हार्ट बीट फास्ट हो जाएगी. सिंपल टास्क करने के बाद भी, सिंपल टास्क करने के साथ साथ उसे थकान होने लगेगी. फॉर एग्जांपल गेटिंग ऑफ फ्रॉम द सोफ़ा. जैसे सिंपल अगर वो पर्सन सोफ़े से उठना चाह रहा है या उसको उठ के किचन में जाना है तो ये जो बहुत ही रूटीन जो स्मॉल डेली रूटीन जो एक्टिविटी है वो भी एक्टिविटी करने में उसको बहुत ही थकान महसूस होगी. एंड लास्ट स्टेज दैट इज़ स्टेज 4, हार्ड एंड ब्रीथ गो फास्टर इवन द रेस्ट. इस स्टेज में क्या होगा, पेशेंट अगर रेस्ट में है, बिल्कुल रेस्ट पोजीशन में है, इसके बाद भी पेशेंट की हार्ट बीट बिल्कुल फास्ट रहेगी एंड पेशेंट बहुत ही टायर्ड, थका हुआ महसूस करेगा. एंजाइटी एंड पाल्पिटेशन ऑलमोस्ट ऑल द टाइम. पेशेंट ऑल टाइम एंग्जियस रहेगा, साथ ही साथ उसकी हार्ट बीट जो रहेगी वो बहुत ही फास्ट रहेगी. नेक्स्ट इज कॉजेस ऑफ हार्ट फेलियर. So first cause, that is coronary artery disease. Coronary artery disease, it is the most common form of heart disease and it is the most leading in cause of heart failure, and this disease result in the formation of or buildup of fatty material inside the arterial wall and that reduce the blood flow and it can leads to heart attack. कोरोनरी आर्टरी डिसीज में क्या होता है, जो आर्टेरियल वॉल्स होती है उनके अंदर में फैट का डिपोजिशन होने की वजह से जो आर्टेरियल वॉल्स है वो नैरो हो जाती है एंड दैट अफेक्ट द सप्लाई ऑफ ब्लड टू द बॉडी, जिसकी वजह से जो ब्लड का फ्लो है वो बहुत ही कम हो जाता है. नेक्स्ट वन इज़ हाइपरटेंशन. if anyone having high blood pressure, then heart has to work harder than it should to circulate the blood throughout the body. अगर किसी को ऑलरेडी किसी पर्सन को हाइपरटेंशन है तो एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल फंक्शन जो उसके जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें ब्लड का फ्लो बहुत ही तेज़ी से होगा एंड ओवर द टाइम दिस एक्स्ट्रा एक्सर्शन कैन मेक द हार्ट मसल्स सो स्टिफ एंड वीक टू इफेक्ट टू पंप द ब्लड वेरी एफिशिएंटली. और जिसकी वजह से क्योंकि जो हाई ब्लड प्रेशर वाले जो पेशेंट होते हैं उनमें जो उनके जो हार्ट के मसल्स रहते हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्टिफ और हार्ड हो जाते हैं एंड दैट वीकेंस द हार्ट. नेक्स्ट वन इज़ फॉल्टी हार्ट वॉल्स. The walls of the heart keep the blood flow in proper direction through the heart, and the damaged wall due to a heart defect, the coronary artery disease or like sometime any inflammatory disease of the heart, for example pericarditis, myocarditis, endocarditis, these all forces the heart to work the harder and which can weak its over the टाइम. सो ओवरऑल किसी भी तरह का अगर हार्ट के वॉल से रिलेटेड डिसीज़ है तो वॉल्स क्या करते हैं, ब्लड का जो फ्लो होता है हमारे हार्ट के चैम्बर्स में उसको एक प्रॉपर डायरेक्शन प्रोवाइड करती हैं. लेकिन अगर किसी भी तरह से वॉल में स्ट्रक्चरल फॉल्ट है या डिफेक्टिव है तो उसकी वजह से क्या होगा, प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं हो पाता है एंड दैट रिजल्ट इन हार्ट फेलियर. नेक्स्ट वन इज़ कार्डियोमायोपैथी. In case of cardiomyopathy, heart muscles becomes very large, including several disease like infectious disease, any type of another disease, which can make the heart muscles become hard, stiff, and enlarged, and that weakens the heart muscles and that affect the function of heart. Next one is heart defect. Any type of congenital heart defect like any type of valve deformity or any type of structural deformity in the part of the heart that makes heart to work harder and pump blood the blood effectively with the help of enlarging the ventricles or enlarging the size of the heart. Next one is myocarditis. It is an inflammation of the
heart, and it is most commonly caused by any type of infection which include various type of microbes or infectious agent, and this can leads mainly left sided heart failure. Next one is diabetes. स्पेशली इन केस ऑफ डायबिटीज़, डायबिटीज़ क्या करता है, जब भी हमारे बॉडी में ब्लड ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये हमारे ब्लड वेसल्स को रप्चर करते हैं, एंड दैट डिक्रीज द ब्लड फ्लो टू द हार्ट एंड अदर बॉडी पार्ट्स. नेक्स्ट वन इज़ HIV. इफ़ ऑलरेडी पेशेंट अगर इम्यूनोसप्रेसिव है या उसका इम्यून सिस्टम बहुत लो है तो उसको किसी भी तरह का ईजिली हार्ट से रिलेटेड इन्फ्लामेटरी डिसीज़ हो सकता है, दैट मीन्स इन्फेक्शियस डिसीज़ हो सकता है, एंड दैट लीड्स टू heart failure. And next one is thyroid disease. So in case of any type of thyroid disorder में क्या होता है, किसी भी तरह का थायराइड डिसऑर्डर होने की वजह से थायराइड जो हार्मोन्स है वो हमारे क्या करता है, रेनिन एंजियोएल्डोस्टेरोन सिस्टम जो है उसको रेगुलेट करता है. तो अगर किसी भी तरह के थायराइड डिसऑर्डर होते हैं, स्पेशली इन केस ऑफ हाइपोथायराइडिज्म, इट कैन रिजल्ट इन हार्ट फेलियर. Here some of the risk factor for the heart failure. I have already told you about the some of the risk factor in etiology. So here I only tell the name of risk factor. Coronary heart disease, high blood pressure, valvular heart disease, infectious disease of heart. Sometimes chemotherapy or radiation therapy can also cause heart failure by weakening or damaging the heart muscles or tissue. Sometimes pregnancy also cause heart failure because of the delivery, because just after the delivery heart becomes very weak, and this condition, especially in case of pregnancy after the delivery, it makes the heart to becomes harder and weaker to pump the blood effectively according to the need of body. And next one is increased heart rate, that also leads to heart failure. Sometimes heart failure develop from unknown cause, that is called idiopathic. And another unhealthy behaviors like sedentary lifestyle, like obesity, high cholesterol level, increase intake of sodium and fluid, and eliminate or reduce added salt or sugar, and alcohol abuse, drug abuse, these all other factors which can also leads to heart failure. Next one is pathophysiology. So pathophysiology, सबसे पहले हम स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे आपको एक चीज़ यहाँ पे समझना है, कुछ यहाँ पे टर्मिनोलॉजी से. सो फर्स्ट वन इज ESV. It is the volume of the blood in a ventricles to end of the contraction or the systole and the beginning of filling or diastole. ESV, that is इंड सिस्टोलिक वॉल्यूम. इंड सिस्टोलिक वॉल्यूम क्या होता है, ये ब्लड का वो वॉल्यूम है जो कि एक पर्टिकुलर वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन के बाद बचा हुआ होता है. सो दिस इज द एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम. एक यहाँ पे एक चीज़ और आप लोगों को जानना ज़रूरी है, दैट इज़ EDV, दैट इज़ द वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन द राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल एंड द एंड और फीलिंग in or the amount of blood in the ventricles just before the systole. इन डायस्टोलिक वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, वेंट्रिकल्स में सिस्टोल स्टार्ट यानी कि कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होने के पहले, जस्ट पहले जितना वॉल्यूम ब्लड का भरा हुआ होता है, फिल्ड होता है, दैट इज़ कॉल्ड इन डायस्टोलिक वॉल्यूम. और सेकेंड थिंग क्या मैंने बताया, इंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, यानी कि वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद ब्लड का जितना वॉल्यूम वेंट्रिकल्स में होता है, दैट इज कॉल्ड इंड सिस्टोलिक वॉल्यूम. सो ब्लड कंजेस्टेड इन द लेफ्ट वेंट्रिकल. सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो इफेक्टिवली ब्लड को पंप नहीं कर पा रही है थ्रू द आयोटा टू द बॉडी. तो जिसकी वजह से क्या होगा, ब्लड जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल्स में कंजेस्टेड होना स्टार्ट होगा, क्योंकि वो ब्लड वहाँ पे कंटिन्यू एक्यूमुलेट होता जा रहा है, वो बॉडी को सप्लाई नहीं हो रहा है. तो जिसकी वजह से लेफ्ट वेंट्रिकल्स में क्या है, ब्लड कंटिन्यूअली वहाँ पे कंजेस्टेड होना स्टार्ट होगा, एंड दैट इंक्रीज द लेफ्ट वेंट्रिकुलर इंड
सिस्टोलिक वॉल्यूम, जिसकी वजह से लेफ्ट वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद जितना अमाउंट ब्लड का बचना चाहिए था, नॉर्मल अमाउंट से ज़्यादा अमाउंट का ब्लड जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन के बाद भी बचा हुआ रहेगा। दैट इज़ इंक्रीज लेफ्ट वेंट्रिकुलर एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, जिसकी वजह से क्या होगा, लेफ्ट आर्टरियम कैन नॉट एम्प्टी कंप्लीटली बिकॉज ऑफ द इंक्रीज ESV इन द लेफ्ट वेंट्रिकल। ऑलरेडी यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल इतना ज़्यादा कंजेस्टेड हो गया है, तो जिसकी वजह से क्या होगा, ऑलरेडी लेफ्ट आर्टरियम से ब्लड आ रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेकिन लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी को सप्लाई नहीं हो रहा है, तो क्या है, ब्लड लेफ्ट आर्टरियम से जो लेफ्ट वेंट्रिकल में आया वो वहाँ पड़ा हुआ ही है, जिसकी वजह से क्या होगा, लेफ्ट आर्टरियम भी कम्प्लीटली कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा, यानी कि कम्प्लीटली जो है एम्प्टिंग नहीं होगी लेफ्ट आर्टरियम की। That result in blood congestion in the left atrium, which increase in left arterial end systole वॉल्यूम, जिसकी वजह से क्या होगा, लेफ्ट आर्टरियम के भी कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद जितना ब्लड वहाँ पे बचना चाहिए था उससे ज़्यादा ब्लड लेफ्ट आर्टरियम में भी बचा हुआ रहेगा। तो ओवरऑल क्या हो रहा है, पहले लेफ्ट वेंट्रिकल्स का एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, देन लेफ्ट आर्टरियम का एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। दैट रिजल्ट इज ब्लड कंजेशन इन द पल्मोनरी वेन्स। अब क्या होगा, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू जो लेफ्ट आर्टरियम में ब्लड आ रहा था वो वहाँ पे कंजेशन हो जाएगा वेन्स में। क्यों? क्योंकि वेन से जहाँ पे आर्टरियम में ब्लड आ रहा है, ऑलरेडी जो लेफ्ट आर्टरियम ऑलरेडी कंजेस्टेड है, ब्लड पूरी वहाँ पे एम्प्टी नहीं हुई है, ऑलरेडी लेफ्ट वेंट्रिकल है वो भी पूरा एम्प्टी नहीं हुआ है। तो जब लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो दोनों ही कंजेस्टेड है, यानी कि उनमें ब्लड जो है वो बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, तो क्या होगा, पल्मोनरी वेन्स जो है उससे जो ब्लड आ रहा था लेफ्ट आर्टरियम में वो नहीं आ पाएगा, क्योंकि वहाँ पे कंजेशन हो जाएगा। एंड विद दिस द हाई वीनस प्रेशर इन द पल्मोनरी वेन्स, जिसकी वजह से पल्मोनरी वेन्स के अंदर जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। एंड द कैपिलरी प्रेशर इन द लंग्स ऑल्सो इंक्रीज एंड द ब्लड कंजेस्टेड देयर, जिसकी वजह से जो कैपिलरीज है उन कैपिलरीज का जो प्रेशर है लंग्स में, ब्लड कैपिलरीज का वो भी इंक्रीज हो जाएगा बिकॉज ऑफ ब्लड कंजेशन इन द पल्मोनरी वेन्स। अब इसके बाद क्या हो रहा है, दैट इंक्रीज द कैपिलरी प्रेशर दैट रेज द फिल्ट्रेशन रेट विच कॉज फ्लूइड टू एक्यूमुलेट इन द लंग, जिसकी वजह से फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होने लगेगा लंग्स में इंटरस्टिशियल स्पेस में। इंटरस्टिशियल स्पेस दैट इज द स्पेस बिटवीन द टिश्यूज। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटरस्टिशियल स्पेस में फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होने लगेगा एंड दैट लीड्स टू पल्मोनरी एडिमा एंड इन ऑल्सो देयर इज एक्यूमुलेशन ऑफ द फ्लूइड इन द लंग एयरवे दैट रिजल्ट इन डिमिनिस्ड गैसेस एक्सचेंज एंड डिस्पनिया। तो जिसकी वजह से क्या हो गया, ऑलरेडी लंग्स में भी अब क्या हो रहा है, फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होने लग रहा है, जिसकी वजह से जो गैसेस एक्सचेंज है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। एंड विदाउट इंटरवेंशन, अगर हमने इसको ट्रीट नहीं किया, दैन द इंक्रीज पल्मोनरी कंजेशन ऑफ ब्लड कैन कॉज पल्मोनरी आर्टेरियल हाइपरटेंशन। अब अगर हमने इस चीज़ को ट्रीट नहीं किया तो क्या होगा, पल्मोनरी वेन्स के अंदर इतना ज़्यादा यहाँ पे कंजेशन हो गया है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, लंग्स में फ्लूइड का वॉल्यूम इंक्रीज होता जा रहा है और पेशेंट को पल्मोनरी एडिमा हो गया है। दैट लीड्स टू इंक्रीज प्रेशर इनसाइड द पल्मोनरी आर्टरी। अब उसकी वजह से पल्मोनरी आर्टरीज में क्या हो जाएगा, जो ब्लड जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा एंड दैट रिजल्ट टू पल्मोनरी आर्टेरियल हाइपरटेंशन एंड दैट रिजल्ट इन इम्पेयरमेंट ऑफ द एम्प्टिंग ऑफ द राइट वेंट्रिकल, जिसकी वजह से राइट वेंट्रिकल है वो सब प्रॉपरली वो एम्प्टी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑलरेडी यहाँ पे पल्मोनरी जो आर्टरीज हैं उनमें हाइपरटेंशन हो गया है। क्यों? बिकॉज ऑफ द कंजेशन ऑफ फ्लूइड एंड दैट कॉज द राइट साइडेड टू फेल एज वेल। तो ओवरऑल क्या है, पहले अगर हम हार्ट फेलियर का अगर सीक्वेंस देखते हैं तो सबसे पहले लेफ्ट वेंट्रिकल्स क्या होती है, कंजेस्टेड होती है। देन जो लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आ रहा था, ऑलरेडी यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल कंजेस्टेड है तो लेफ्ट आर्टरियम भी कंजेस्टेड हुआ। लेफ्ट आर्टरियम कंजेस्टेड है, दैट मीन्स पल्मोनरी वेन से जो ब्लड आ रहा था लेफ्ट आर्टरियम में अब वो नहीं आ पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे एम्प्टी अच्छे से नहीं हुआ है लेफ्ट आर्टरियम, तो पल्मोनरी वेन्स में भी कंजेशन होगा। उसकी वजह से वहाँ पे क्या हो रहा है, प्रेशर अराइज हो रहा है एंड दैट लीड्स टू पल्मोनरी एडिमा। पल्मोनरी एडिमा होने की वजह से जो पल्मोनरी आर्टरीज हैं उनमें प्रेशर अराइज होगा एंड दैट लीड्स टू इम्पेयरमेंट ऑफ द एम्प्टिंग ऑफ राइट वेंट्रिकल्स एंड रिजल्ट इन राइट साइड ऑफ द हार्ट फेलियर। अब हार्ट फेलियर डेवलप हो गया, देन बॉडी में यहाँ पे कुछ कंपनसेटरी मैकेनिज्म स्टार्ट होते हैं।
So there is systolic heart failure resulted in decreased blood volume that being ejected from the ventricles. अब हार्ट फेलियर होने के बाद क्या हो रहा है, यहाँ पे सिस्टोलिक हार्ट फेलियर अराइज होगा. सिस्टोलिक हार्ट फेलियर में अभी मैंने बताया कि वेंट्रिकल्स सफिशिएंटली कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाते, जिसकी वजह से ब्लड का बहुत ज़्यादा जो अमाउंट है, वॉल्यूम है, वो वेंट्रिकल्स में बचा हुआ ही रहता है. सो देयर इज सिस्टोलिक हार्ट फेलियर रिजल्ट बिकॉज ऑफ डिक्रीज वॉल्यूम बीइंग इजेक्टेड फ्रॉम द वेंट्रिकल्स, क्योंकि यहाँ पे वेंट्रिकल से बहुत कम अमाउंट में ब्लड का वॉल्यूम इजेक्ट हुआ है, यानी कि बॉडी को सप्लाई हो रहा है. देन द सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम इज देन स्टिमुलेटेड, जिसकी वजह से जो हमारा सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम है वो स्टिमुलेट होता है एंड एपिनेफ्रिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन को रिलीज करता है एंड दैट डिक्रीज इन रीनल परफ्यूजन, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, होल बॉडी को जो ब्लड सप्लाई हो रही है वो कम हो रही है, तो किडनी को भी ब्लड सप्लाई कम होगी. सो देयर इज डिक्रीज इन रीनल परफ्यूजन एंड विच कॉज रेनिन रिलीज एंड इट प्रमोट द फॉर्मेशन ऑफ एंजियोटेंसिन 1, जिसकी वजह से रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा एंड देन एंजियोटेंसिन जो 1 है वो एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट हो जाएगा एंड विच कॉज वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, जिसकी वजह से वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कॉज होगा. वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कॉज होने की वजह से क्या होगा, जो ब्लड वेसल्स हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी और बॉडी में सोडियम एंड फ्लूइड का रीअब्जॉर्प्शन होने लगेगा एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ एडिमा and there is reduction in the contractility of muscle fiber of the heart as the workload increase. जैसे जैसे हार्ट पे वर्कलोड बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हार्ट के जो फंक्शन है, हार्ट की जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी है वेंट्रिकल्स की, वो धीरे धीरे डिक्लाइन होती जाएगी. एंड लास्ट फेज इज कंपनसेशन. द हार्ट कंपनसेट फॉर द इंक्रीज वर्कलोड बाय इंक्रीजिंग द थिकनेस ऑफ द हार्ट मसल्स. और हार्ट क्या करेगा, इस चीज़ को फुलफिल करने के लिए, कंपनसेट करने के लिए, बहुत एफिशिएंटली ब्लड सप्लाई करने के लिए हार्ट क्या करेगा, बहुत ही फास्टर पंपिंग करेगा. और फास्ट पंपिंग करने की वजह से क्या होगा, हार्ट के जो मसल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्टिफ और बहुत ही ज़्यादा लार्ज हो जाएंगे. नेक्स्ट इज क्लिनिकल फीचर्स ऑफ हार्ट फेलियर. सो फर्स्ट इज क्लिनिकल फीचर ऑफ लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर. In the left-sided heart failure, first clinical feature that is paroxysmal nocturnal dyspnea, that is the breathing difficulty during sleep. Second one is elevated pulmonary capillary wedge pressure due to congestion of the left ventricles and increased pressure inside the pulmonary veins. Due to pulmonary congestion, patient complains of cough, crackles, wheezing sound, blood sting sputum and tachypnea. Another symptoms are restlessness, confusion, orthopnea, that is the discomfort of breathing while the patient is lying down on flat surface. Tachycardia, that is increased heart rate, exertional dyspnea, and next one is fatigue and cyanosis, that is bluish discoloration of the skin because of decreased tissue perfusion in body. Next is clinical features of right sided heart failure. So in this first clinical feature, this which is most important, that is distended jugular veins. लेफ्ट साइडेड और राइट साइडेड हार्ट फेलियर दोनों में आप एक चीज़ जो फाइंडिंग है वो आपको डिफरेंट मिलेगी. डिस्टेंडेड जुगुलर वेंस, जो हमारे नेक में जो जुगुलर वेंस रहते हैं वो डिस्टेंडेड हो जाते हैं इस पे इन द case of right sided heart failure. Next one is fatigue, ascites due to retention of sodium and water, increased peripheral venous pressure, enlarged liver and spleen because of decreased perfusion, and patient may have a secondary chronic pulmonary problems like pulmonary edema. Patient may complain of anorexia, any GI distress, any GI discomfort, weight gain, dependent edema. So this is the clinical feature of right sided heart failure and left sided heart failure. Next is diagnosis. Firstly, we will take the history of the patient regarding any type of medical history related to any heart disease or any another risk factor which can trigger the condition of heart failure. For example, diabetes mellitus, any family history, obesity, overweight, unhealthy lifestyle, high cholesterol level.
Next, we will assess the sign and symptoms of dyspnea, shortness of breath, fatigue, edema, assess for the sleep disturbance, explore the patient understanding of heart failure and self management strategy and ability and the willingness to adhere to the डोज स्ट्रेटजीज। हमको पेशेंट का ये भी समझना है कि पेशेंट को उस पर्टिकुलर डिसीज़ जो हार्ट फेलियर हुआ उसके बारे में उसको कितनी अंडरस्टैंडिंग है, उसको उसके बारे में कितना नॉलेज है, क्या क्या चीज़ें हैं उसको मालूम है कि उसको वो सेल्फ मैनेज कर सकता है। फॉर एग्जांपल लाइफस्टाइल चेंजेस जो क्या क्या हमको करना चाहिए इन केस ऑफ हार्ट फेलियर। Then we will perform the physical examination in which we auscultate the lung sound for the presence of crackles and the wheezing. Then we auscultate the heart for the presence of S3 heart sound, that is cardiac murmur or gallop sound, which is especially present in case of heart failure. Assess the jugular venous distension for the presence of distension in case of right-sided heart failure. Assess the level of consciousness. Assess the dependent part of the patient body for the perfusion and edema. And also assess the degree and grades of edema. Assess the liver for the hepatojugular reflex. Hepatojugular reflex, it is the distension of neck vein which is precipitated by the maneuver of the firm pressure applying over the liver. Hepatojugular reflex में क्या होता है, जैसे ही हम जो लिवर के ऊपर इस बहुत ही जेंटली प्रेशर अप्लाई करते हैं तो जो जुगुलर वेन्स है वो डिस्टेंडेड हो जाती है एंड दिस इज द क्लिनिकल फीचर ऑफ हार्ट फेलियर. So assess for this reflux and also assess for the urine volume. Beside the health history and the physical examination, we will perform some other diagnostic tests like blood test. In this we will check for the natriuretic peptide. It is main marker or you can say hallmark for the patient with the heart failure because it reduce the arterial pressure by decreasing the blood volume and systemic vascular resistance. ये क्या करता है, जो आर्टेरियल प्रेशर है उसको डिक्रीज करता है बाय डिक्रीजिंग द ब्लड वॉल्यूम. ये जो हमारे ब्लड का वॉल्यूम है बॉडी में उसको डिक्रीज करता है और इसकी हेल्प से वो ये आर्टेरियल ब्लड प्रेशर को ये क्या करता है, मेंटेन करता है. तो यहाँ पे हमको ये भी देखना है कि ये जो पर्टिकुलर जो यहाँ पे एक केमिकल है इसका जो लेवल है वो हमारी बॉडी में क्या है, क्योंकि इसका जो फंक्शन हमारी बॉडी में क्या है, क्योंकि ये जो आर्टेरियल प्रेशर है उनको रिड्यूस करने का काम करता है. नेक्स्ट अनदर इमेजिंग टेस्ट लाइक चेस्ट एक्सरे, कार्डियक सीटी स्कैन, MRI to collect the images of heart and chest to identify any structural abnormality, any defect or any pathology which is present inside the heart. Next one is electrocardiogram to find out the electrical activity of the heart. Also it has to diagnose the rhythm problem of the heart and any structural deformity or any damage of the heart. Next one is coronary angiogram. In this a thin flexible tube which is inserted in the blood vessels, especially in the groin or in the arms, and it is guided through the aorta in the coronary artery, and in this we injected a dye which is a contrast material which provide and create images of heart while we are taking x-ray of heart. Next one is myocardial biopsy. In this a doctor insert a small biopsy cord into a vein in the neck or in the groin, and small pieces of heart muscles are taken for the pathological testing. Next one is echocardiogram. It helps to identify the sound waves to produce a video image of the heart, and it helps to see the size and shape of the heart along with the any structural abnormalities. And also it measures the ejection fraction. What is ejection fraction? It measures the how much blood the left ventricle pumped out with the each contraction. ejection fraction का मतलब क्या होता है कि लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो एक सिंगल कॉन्ट्रैक्शन में कितना जो ब्लड है, ब्लड का वॉल्यूम वो पंप कर रहा है. तो ये क्या करता है, ये इजेक्शन फ्रैक्शन को मेज़र करने में भी हेल्प करता है. नेक्स्ट वन इज स्ट्रेस टेस्ट. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ट्रेडमिल टेस्ट, and it measures the health of the heart by how it responds to any exertional activity.
Another one is pulse oximetry. In this, oxygen saturation may be low, especially when acute heart failure, which is imposed on the chronic obstructive pulmonary disease or in case of chronic heart failure. Next one is arterial blood gas analysis, in which left ventricular failure, it is characterized by the mild respiratory alkalosis or hypoxemia with an increased carbon dioxide saturation. And next one is complication. So here four major complication of heart failure. So first one is kidney damage or kidney failure. Always heart failure can reduce the blood flow to our kidney, and which cause the kidney failure, and if the heart failure becomes untreated, it can damage the kidney and it cause renal failure. Next one is heart valves problem. The valves of the heart which keeps the blood flow in the proper direction through our heart, but the not functional proper not functioning of not if the wall of the heart not functioning properly, then it can leads to heart valve problems. Next one is heart rhythm problems. हार्ट रिदम प्रॉब्लम्स ये क्यों यहाँ पे अराइज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो सिस्टोल है और डायस्टोल है वो प्रॉपरली जो एक नॉर्मल वे में होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, एंड दैट इज टू रिदम प्रॉब्लम और समटाइम इट्स कॉज कार्डियक एरिथमिया. एंड लास्ट वन इज द liver damage. Heart failure, it can leads to a buildup of fluid that put too much pressure on the liver, and this fluid backups can lead to scar formation in the liver and which make difficult to liver to function properly. ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतने ही क्लिनिकल कॉम्प्लिकेशन है. हार्ट फेलियर में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिस्टम, क्योंकि हार्ट फेलियर में क्या हो रहा है, ऑलरेडी यहाँ पे हार्ट को भी ब्लड सप्लाई नहीं हो रही है, साथ ही साथ बॉडी को भी ब्लड सप्लाई नहीं हो रही. तो हार्ट फेलियर के जो लास्ट स्टेज रहते हैं उसमें पेशेंट के ऑलमोस्ट सारे ऑर्गन अफेक्टेड हो जाते हैं. तो हमको रेस्पिरेटरी सिस्टम से भी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन मिलेंगे. फॉर एग्जांपल पल्मोनरी एडिमा. पेशेंट में अगर हम न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स देखें, पेशेंट बहुत कन्फ्यूज रहेगा, है ना. तो ये सारी चीज़ें हो सकती है. पेशेंट शॉक में जा सकता है, रीनल फेलियर हो सकता है, यूरिन आउटपुट हमको कम मिलेगा, जीआई स्ट्रेस हो सकता है, स्किन में हमको प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगी, सेंसरी सिस्टम हमारा डिस्टर्ब हो जाएगा, पेशेंट साइकोलॉजिकल बहुत डिस्टर्ब हो जाएगा, लो सेल्फ स्टीम, पेशेंट लुक एंग्जियस. तो ये सारे कॉम्प्लिकेशन हैं जो लास्ट स्टेज में पेशेंट में देखने को मिलेंगे सिस्टमिक. ये 4 कॉम्प्लिकेशन जो मेजर कॉम्प्लिकेशन है वो मैंने यहाँ पे बताया है. नेक्स्ट जो इसका पार्ट है वो हम लोग नेक्स्ट कल पढ़ेंगे, जो इसका मैनेजमेंट पोर्शन है, मैनेजमेंट ऑफ heart failure. So in this video we discuss about the definition, types, causes, clinical features, pathophysiology and diagnostic test and complication of heart failure.